1 ईयर बाइबल रीडिंग में से हम पढ़ेंगे आइज़ाया 52 चैप्टर, 53 चैप्टर, यशायाह 52-53 अध्याय हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में पढ़ेंगे हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पहले, फिर बाद में हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। आइज़ाया 52 चैप्टर पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। The church rose with God's promise of free redemption, tidings of the gospel, prophecy of the glory of Christ after his sufferings. पवित्र आत्मा कुछ काम का नहीं, अगर आप ये वचन हम में जीवित नहीं करेंगे तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाना है। अब फादर गॉड हमारी मेहनत का आदर कर, हमारे ज्ञान बुद्धि समझ को तैयार कर, ताकि हम परमेश्वर को लाभदायी बन सके और जगत में और हमारे इर्द गिर्द में सभी बातों में हम लाभदायी बन सके परमेश्वर के अवस्थाओं में। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। The church roused with God's promise of fire redemption, tidings of the gospel, prophecy of the glory of Christ after his sufferings. First verse से पढ़ेंगे। Awake, awake, put on thy strength, O Zion, put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. For henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean. Shake thyself from the dust, arise and sit down, O Jerusalem. Loose thyself from the hands of the neck, O captive of thy neck, O captive daughter of Zion. For thus saith the Lord, ye have sold yourselves for naught, and ye shall be redeemed without money. Amen. For thus saith the Lord God, my people went down aforetime into Egypt to sojourn there, and the Assyrian oppressed them without cause. देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं कि आप ज़रूरत नहीं है, कोई कारण है आपको सताने का, बस सताए जाते हैं। ओके। Now therefore what have I here, said the Lord, that my people is taken away for naught? They that rule over them make them to howl, said the Lord, and my name continually every day is blasphemed. Therefore my people shall know my name. Therefore they shall know in that day that I am he that doth speak. Behold, it is I. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. Thy watchmen shall lift up the voice, with the voice together shall they sing, for they shall see eye to eye, when the Lord shall bring again Zion. Break forth into joy, sing together, ye west places of Jerusalem, for the Lord hath comforted his people, he hath redeemed Jerusalem. The Lord hath made bare his holy arm in the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Depart ye, go ye out from thence, touch no unclean thing, go ye out of the midst of her, be ye clean that bear the vessels of the Lord. देखा 11 वचन ध्यान रखिए, हमको अशुद्ध कामों से दूर रहना है। जो बातें अशुद्ध करती है वो हृदय के अंदर है। ओके, हृदय में हमने कुछ भी अशुद्ध करने वाली बातों को संगोपन नहीं करना है, पालन पोषण नहीं करना है।
12 वचन से आगे, फॉर ये शैल नॉट गो आउट विथ हेस्ट नॉर गो बाय फ्लाइट, फॉर द लॉर्ड विल गो बिफोर यू एंड द गॉड ऑफ इज़राइल विल बी योर रिवॉर्ड। हालेलुया। हमारा अगुवा है परमेश्वर। हमको डर के भागने की ज़रूरत नहीं है और हमको भगदड़ी मचाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 13 वचन से आगे, 13th वर्स से आगे, Behold, my servant shall deal prudently. He shall be exalted and extolled and be very high. As many were astonished at thee, his visage was so more than any man, and his far more than the sons of men. So shall he sprinkle many nations. The kings shall shut their mouths at him, for that which had not been told them shall they see, and that which they had not heard shall they consider. तो इस प्रकार से हमारा जीवन परमेश्वर ने यहाँ पर एक्सपोज करके दिखाया किस प्रकार से मसीही जीवन होना चाहिए। ओके, यीशु के अंदर का हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये कैरेक्टर हमारे अंदर हमको ज्ञान में पकड़ लेना है, हमारे बुद्धि में जकड़ लेना है, हमारी समझ में हमने इसको इस्तेमाल होने देना है। ओके, 53 chapter, the prophet complains of the want of faith, suffering of Christ, etc. Who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed. देखिए, परमेश्वर की भुजाओं को प्रकट होना पड़ता है किसी के ऊपर। लोग परमेश्वर को कभी नहीं समझेंगे। परमेश्वर जब तक प्रकट नहीं होता है, अपने आप को दिखाता नहीं है, तब तक लोग परमेश्वर को समझ नहीं पाते हैं। और वो अपने आप को कहाँ पर दिखाता है? अकेला जगह में, जिसका नाम अकेला। ओके, जो हमारे आत्मा में एक स्पेस है, एक जगह है जिसका नाम, टाइटल अकेला ऐसा है। उस जगह में परमेश्वर अपने आप को रिवील करता है, प्रकाशित करता है, हमको दिखाता है कि वो परमेश्वर है। ओके, तभी हम मसीह करते हुए भागने लगते हैं। ओके, 2 वचन से 2nd वर्स से आगे पढ़ेंगे। फॉर ही शैल ग्रो अप बिफोर हिम एज अ टेंडर प्लांट एंड एज अ रूट आउट ऑफ अ ड्राई ग्राउंड। ही हैथ नो फॉर्म नॉर कमलिनेस, एंड व्हेन वी शैल सी हिम देयर इज नो ब्यूटी that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Fourth verse से आगे, surely he hath borne our griefs, carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shearers is dumb, so he openeth not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living, for the transgression of my people was he is stricken, and he made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. ये सब कुछ यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के वक्त हो रही बातों का बयान किया जा रहा है। ओके, 10 वचन से आगे पढ़ेंगे, 10 वर्स से आगे। Yet it pleased the Lord to bruise him, he hath put him to grief.
when thou shalt make his soul an offering for sin. हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का प्राण पाप के लिए कुर्बानी चढ़ाया गया। ओके, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied by his knowledge. Shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. Intercession for the transgressors. ध्यान दीजिए यहाँ पर। ओके, ये कंप्लीट मसीह के विषय में है। अगर हम बहुत ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो हम मसीह में कैसे होना चाहिए ये हमारे समझ में आ जाएगा। हम पढ़ेंगे 52 अध्याय यशायाह का। DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। परमेश्वर यरूशलेम को मुक्त करेगा। पहले वचन से, हे सियोन। सियोन बोलेंगे तो यहाँ पे हम मसीह लोगों के विषय में बात हो रही है। हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेंत मेंत बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। प्रभु यहोवा यूं भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी, और अश्शूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूँ, जबकि मेरी प्रजा सेंत मेंत हर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं, और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। वह उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा ही है। देखो, मैं ही हूँ। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुन, तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौट रहा है। हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपने पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। दूर हो, दूर, वहाँ से निकल जाओ। कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा। देखा, यानी अगुवाई का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप वो आपको बताएगा
कभी लेफ्ट मुड़ना है, कभी राइट मुड़ना है, कभी आगे जाना है, कभी रुक जाना है, कभी कैसे चलना है, वो सारा स्टेप बाय स्टेप वो लेकर जाएगा आपको। इसके लिए आपको डायरेक्ट अंत नहीं दिखाता है वो, आप सिर्फ वचन में से अंत को पढ़ते हैं, लेकिन अंत तक आप पहुंचेंगे कैसे वो रास्ते नहीं दिखाता है। ठीक है, और हुआ चलेगा और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। हालेलुया। देखिए, बहुत बार रॉन्ग कन्फेशन किया जाता है, इसकी वजह से शैतानी जगत के लोग उन शब्दों का इस्तेमाल करके जो कमज़ोर मसीह है उसको सताते हैं। ओके, क्या लिखा है यहाँ पर? इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। ये वचन है ना? ओके, ये वचन है। किसने कहा कि पीठ की रक्षा नहीं होती? ये रॉन्ग कन्फेशन ही मजबूत कर दिए हैं उन लोगों के माइंड में। अब वो अपने पीठ के पीछे हमेशा किसी ना किसी को, प्रेयर पार्टनर को ढूंढते फिरते हैं। ओके, क्योंकि उनको लगता है मेरी पीठ तो खुली पड़ी है, मेरी पीठ तो रखवाली में नहीं है, मेरी पीठ में के पीछे तो मुझे कोई रखवाला नहीं है। अरे किसने कहा आपको ऐसा? फिर ये वचन का भाग मिटा दीजिए अगर आप सच है तो। ओके, अगर आपकी दिशा से वचन को लेना है तो फिर ये वचन का भाग आप मिटाना पड़ेगा आपको। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन के अंदर से कुछ भी मिटाएगा तो उसे पनिश किया जाएगा। क्यों पनिशमेंट के लिए अपने आप को तैयार करते हैं ऐसे शब्दों को बोलकर? आमीन। कभी नहीं बोलना है, क्योंकि मैंने बहुत परेशानी सही है ये एक गलती के वजह से कि पुलपिट से लोग कहते हैं बहुत कुछ, शैतान उसको लेता है और फिर कमज़ोर इंसान जो है उसके ऊपर वो इस्तेमाल करता है। ओके, ये तरह से नहीं करना है। हमारे लिए परमेश्वर का क्या क्या मौजूद है वो सब कुछ देना है लोगों को, क्योंकि हम जो मौजूद है उसी के अंदर सच्चाई के साथ खड़े रह सकते हैं। जो मौजूद है लेकिन बताया नहीं जाएगा तो वो अज्ञान ही बना रहेगा, और अज्ञानता नाश करता है मसीहों का। आमीन। दास का दुख भोग, 13 वचन से आगे देखो। मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बातें देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी ना थी। ये हमारे बारे में है। परमेश्वर ने हमने नहीं देखा ना, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया जा रहा था, है ना, कब्र में गाड़ा जा रहा था, हमने नहीं देखा ना उसको, लेकिन कैसे क्या हमारे अंदर ये बात समझ आने लगी, और कैसे क्या हम इसके पीछे पीछे होने लगे, क्योंकि हमारा अकेला नाम का जो जगह है आत्मा के अंदर, उस जगह में परमेश्वर का आत्मा के रहने लगा, और वही हमको ये सब कुछ बातें बताता है परमेश्वर का, जो हम बाइबल रीडिंग करते वक्त आपको सिखाते हैं। ओके, और ये बातें हैं जो हम नहीं देखे हुए लोग हैं फिर भी हम विश्वास करने लगते हैं। आमीन। क्योंकि उस एरिया ऑफ लाइफ के अंदर वही जाएगा जिसके लिए ठहराया गया है। ओके, यानी उस अकेला जो नाम है जगह का हमारे आत्मा के अंदर, उसके अंदर केवल पवित्र आत्मा ही जाएगा। वो अगर नहीं है तो फिर वो जगह खाली पड़ी रहेगी, लेकिन अनलॉक भी नहीं होगी। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही उसके अंदर रहने के लिए वो जगह बनाई गई है। ओके, लेकिन परमेश्वर ने उत्पत्ति के 6 अध्याय के 3 में बोल दिया, क्योंकि मनुष्य केवल शरीर ही है, इसकी वजह से मेरा आत्मा सदा तुम्हारे साथ मनुष्य के साथ विवाद करता नहीं रहेगा। ओके, तो उसको विवाद करना या नहीं करना, ये आपका शरीर उसको मजबूर कर देता है।
ओके, आप प्लेन ओबीडियंस नहीं करते हैं। सिर्फ उस जगह में अगर परमेश्वर ने आत्मा को रख दिया जिसका नाम अकेला है, उस जगह में अगर पवित्र आत्मा को रख दिया तो आपने उसकी प्लेनली हाँ में हाँ मिलाना है। उसके साथ आपने बहस नहीं करनी है। समझ में आया? वो परमेश्वर का इच्छा था, ठीक है, और वो काम प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। इसके लिए अब प्रभु यीशु ने वो आज्ञा पालन हाँ में हाँ करता हुआ चला। सब कुछ जो उसके अंदर से पवित्र आत्मा बता रहा था वैसा ही वो करता गया। उसको देख देख कर वो जीता रहा, पूरा करता गया, उसको स्वीकारा गया और फिर आज्ञा पालन की व्यवस्था पूरी हो गई। ठीक है, वो पूरी होने के बाद अब सिर्फ हम यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करते हैं, आज्ञा पालन का सारा बेनिफिट्स हमको मिल जाता है। ठीक है, तो पिता के पास जाने का यीशु मसीह सिग्नेचर है। ओके, बिना सिग्नेचर के चेक पास नहीं होते हैं। तो अगर चेक पास होना है तो यीशु मसीह का नाम उसके ऊपर रहना चाहिए, तो वो चेक पास हो जाएगा, नहीं तो वो चेक पास नहीं होता है। ओके, यानी जीवन के बेनिफिट्स हमको नहीं आएंगे यीशु मसीह के नाम के बिना। तो वो आज्ञा पालन का अवस्था आदम को दिया था करने के लिए, आदम ने नहीं किया। ओके, तो उस जगह में क्या आ गया? फिर पाप प्रवेश किया। ओके, अब पाप को हटा दिया तो अब क्या आना चाहिए? यीशु मसीह कुर्बान हो गया, पाप को निकाल दिया, तो अब वहाँ पर क्या आना चाहिए? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा अभी तक नहीं आया है किसी के जीवन के अंदर, तो अभी भी पाप उसके ऊपर राज्य कर रहा है, लेकिन वो पाप से छूट गया है। फिर भी बाहर से पाप उसको बंदी कर लेता है। ओके, उस जगह में तो अभी तक कोई नहीं आया है। अभी हम जो जी रहे जीवन में, उस जगह को अभी हम खाली रखे हुए जीवन जीते हुए चल रहे थे जब मसीह में नहीं थे। जैसे ही मसीह में हम आए तो वो किस कारण से आए? क्योंकि ये वचन पूरा हो गया हमारे अंदर। वो सारा चीज़ हमको उस जगह में, अकेला नाम का जो जगह है उसके अंदर पवित्र आत्मा ने आकर सब कुछ हमको दिखाया, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और वो फिर हमारे अंदर से हम विश्वास में उतर कर आए और हम मसीह बन गए। ओके, तो हमारा चाल चलन अब उसके अनुसार है जो हमारे आत्मा के अंदर बिठाया गया है, पवित्र आत्मा। समझ में आया? तो इसके लिए परमेश्वर ने क्या कहा? तुम्हारे आत्मा के अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। यानी हमारे आत्मा के अंदर वो जगह है जिसका नाम अकेला है। उस जगह के अंदर पवित्र आत्मा रह रहा है और अब हमारे आत्मा और पवित्र आत्मा एक हो चुका है, अभी कंप्लीट हो चुका है। तब तक वो क्या था? हमारा खुद का आत्मा और एक खाली जगह जिसका नाम अकेला। ओके, अब दुनिया में जो इंसान आप देखते हैं वो कैसे है? मनुष्य आत्मा है और एक उस आत्मा में खाली जगह पड़ी हुई है जिसका नाम है अकेला। ओके, उसके अंदर पवित्र आत्मा अभी तक आया हुआ नहीं है और उसको आने का रास्ता बनाने के लिए हम मसीही लोग सुसमाचार को फैलाते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से वो हमारे जीवन के विषय में वर्णन है यहाँ पर कि हम किस प्रकार के लोग हैं, कैसे हमने यीशु मसीह को विश्वास में लिया जबकि हमने देखा भी नहीं था उसको। हमने तो कभी उसके बारे में कभी हमने चर्चाओं में सिर्फ सुना होगा, लेकिन हमने तो खुद देखा नहीं है। कैसे क्या हम विश्वास करें? क्यों विश्वास किया? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उस जगह को ले लिया जिसके अंदर उसको रखा हुआ कमरा था हमारे अंदर, हमारे आत्मा के अंदर। आमीन। जिसका नाम था अकेला, उसके अंदर पवित्र आत्मा के रहने लगा। हालेलुया। 53 वचन अध्याय पढ़ेंगे, 53 अध्याय पहले वचन से। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले।
उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान का वर्णन है ये सब। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला था? खोई हुई भेड़ के लिए मैं आया हूँ, है ना। मैं यरूशलेम को जैसे मुर्गी अपने पंखों के नीचे बच्चों को समेट लेती है, वैसे मैं यरूशलेम को लेना चाहता था, लेकिन वो मेरी सुनती नहीं है। आमीन। तो यीशु मसीह को क्रूस का बलिदान उस मेमना ऐसा कहा गया। क्या था वो? परमेश्वर ने जो अब्राहम के वक्त इसहाक जो बलि करो कहा था, तो इसहाक की जगह मेमना दिया था। वो मेमना यीशु मसीह है। आमीन। और फिर वहां से लेकर पाप का बलिदान यीशु मसीह के जगह जो था, वो पुराने नियम में मेमना को बलिदान किया जाता था। ओके, हर साल पाप का बलिदान किया जाता था, तभी परमेश्वर का क्रोध इस्राएल से छुपा दिया जाता था। मतलब पाप छुपा दिया तो परमेश्वर का क्रोध अब नहीं रहता था, परमेश्वर का फेवर होता था। ओके, और सिर्फ अब लोगों को क्या देखना पड़ता था? शुद्ध रहने का और अशुद्ध का व्यवहार। ओके, व्यवस्था, शुद्ध अशुद्धता की व्यवस्था में उनको सीधे तरह से शुद्धता में जीवन जीना था। ठीक है। अब उसके बाद में हम यीशु मसीह को देखते हैं, उसे कहा गया है वह परमेश्वर का मेमना है जो पाप के लिए बलिदान किया गया। ओके, तो इस्राएल का जो हर साल होता था वो बलिदान मेमने का, अब एक ही बार यीशु मसीह वो बलिदान हो गया, निष्पाप बलिदान था वो, और उसके ऊपर लोगों के मनुष्य जाति के पाप रख दिए गए। सारी पृथ्वी भर जितनी भी मनुष्य जाति अब उत्पन्न होती जाएगी, उनके सारे पाप, मनुष्य जाति के हर एक पाप, हर अधर्म, हर श्राप यीशु मसीह के ऊपर रख दिया गया। पाप का मेमना जब पाप के बलिदान के लिए होता था, उसके ऊपर हाथ रखकर इस्राएल लोग पाप कबूल करते थे, वो पाप का बलिदान हो जाता था। ओके, तो वो पाप का बलिदान प्रभु यीशु मसीह बना। इसके लिए फिर परमेश्वर का फेवर अगर हमको चाहिए, परमेश्वर के गुडनेस हमको चाहिए, भली चीज़ें हमको, भली बातें चाहिए, उसकी दया हमको चाहिए। ओके, तो उसकी तरस हमारे ऊपर आने के लिए हम चाहते हैं। ओके, उसका अटेंशन हमारे घर के ऊपर, हमारे ऊपर आने के लिए हम चाहते हैं, तो हमने उस पाप के बलिदान को स्वीकारना पड़ेगा। जहाँ पे पाप का बलिदान स्वीकारा नहीं गया होगा, वहाँ पर परमेश्वर अपना फेवर, अपने बेनिफिट्स नहीं देता है।
ओके। और अगर वो देता भी है तो वो टोटल कंप्लीट नहीं देता है, वो सिर्फ इसीलिए देता है क्योंकि आप मनुष्य प्राणी हैं। ओके। तो आपको अगर परमेश्वर ने भेजा हुआ मेमना यीशु मसीह है और यीशु मसीह कुर्बान हुआ है पाप माफ़ होने के लिए, उसकी कुर्बानी दी गई है, तो वो कुर्बानी आप अगर विश्वास करके ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर से आप मेल कर लेते हैं। आप बोलते हैं ठीक है बॉस, तू सही मैं गलत। ओके, यस यस एंड आमीन। जब आप परमेश्वर को हाँ में हाँ मिला देते हैं, परमेश्वर बोल रहा है वो मैंने भेजा हुआ है, आप बोलते हैं परमेश्वर तूने भेजा है। परमेश्वर कहता है वो मेरा इकलौता प्रिय बेटा है, आप कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह तेरा इकलौता प्रिय बेटा है। ओके, हाँ में हाँ, कोई इनकार नहीं, कोई बहस नहीं, तब जाके आपके पाप माफ़ हुए हैं और आप परमेश्वर से अब बेनिफिट प्राप्त करने के लिए काबिल हो चुके हैं। तब तक परमेश्वर सिर्फ दया की खातिर ही मनुष्य जाति के ऊपर फेवर रखता है, पूरी तरह से वो अपने आप को उनके ऊपर उंडेलता नहीं है। ओके, जब वो अपने आप को उंडेलता है तो आपने पढ़ा 52 अध्याय में 14-15 वचन में आपने पढ़ा कि वो प्रकाशन देता है। ओके, वो प्रकट करता है भेद की बातों को। ठीक है, तो ऐसे जब वो उंडेलता है तो भेद प्रकट हो जाते हैं। जैसे हम बाइबल रीडिंग कर रहे हैं तो एक एक बात मैं आपको सिखाए जा रही हूँ, समझाए जा रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा उस जगह में से स्रोत मुझे मिल रहा है, जो अकेला जो जगह है मेरे आत्मा में, उसमें जो पवित्र आत्मा आके रह रहा है, उसने ये सारी बातें मेरे द्वारा आप तक पहुँचाई है। वो आपके मुलाकात में अभी मौजूद है। ओके, इस तरह से परमेश्वर अपने बेनिफिट्स को रिलीज करता है और फिर परमेश्वर कहता है ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नाश होती है। तो अब हम ज्ञान के अभाव में नहीं है। ओके, क्यों परमेश्वर हमको वचन सिखाता है? ताकि हमारे ज्ञान में खालीपन ना रहे, हमारे ज्ञान में सही दिशाएं मिले। ठीक है, ताकि हम नाश ना हो। आगे पढ़ेंगे हम। सात वचन से आगे, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। देखिए, वंश किसको कहते हैं? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यीशु मसीह दोष बलि कर दिया गया, बलिदान कर दिया गया। इंसान का वंश बेटा कहाँ पर रहेगा? जिसका बेटा जन्मा ही नहीं और फिर वो मर गया, तो अब कहाँ से आएगा उसका बीज, उसका वंश, उसका बेटा कहाँ से लाओगे आप? समझ में आया? तो वंश वो नहीं है जो आप समझ रहे कि घर में बेटा पैदा हो तो वो मेरा वंश होगा। वंश वो नहीं रहा अभी। ध्यान दीजिए, फाइट मत कीजिए किसी के घर के अंदर। आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे नहीं है, आपको बेटी है, आपको बेटा नहीं है, आपकी पीढ़ी नहीं है, आपका पीढ़ी खत्म हो गया। बस करो नॉनसेंस। ओके, वंश का समय खत्म हो चुका है। अभी वो वंश 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 नहीं रहा जिसे बेटा वंश कहा जाता है, वैसा नहीं रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। समझ में आया?
यानी इंसान तो अब मर रहा है, खत्म हो रहा है, अब कहाँ से बेटा पैदा करेगा वो। लेकिन परमेश्वर कहता है जब वो मर जाएगा उसके बाद उसका वंश शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ओके, उसी इंसान का, अगर एक आदमी पुरुष मर जाता है, उसका बीज कैसे क्या एक बच्चा पैदा कर सकता है? समझ में आया? उसको जीवित रहना पड़ेगा। तो यह शरीर के वंश की बात नहीं है जो आप समझते हैं। ओके, शरीर के बारे में क्या है पता है? उत्पत्ति के पुस्तक में पहले अध्याय में लिखा है, हरेक फलों के अंदर, हरेक प्राणियों के अंदर उसके जाति का बीज रखा हुआ है। समझा? तो मनुष्य का बीज आदम के अंदर था और हव्वा ने बोला मुझे मनुष्य फल प्राप्त हुआ। समझ में आया? तो हमारे मनुष्य शरीर को बनने के लिए ये एक अवस्था है कि मनुष्य, पुरुष का बीज स्त्री में रखा जाता है और फिर वो जन्म लेता है एक शरीर में। वो आप जब बोल रहे हैं वंश, उसको जो वंश बोल रहे हैं तो वो शरीर का वंश बता रहे हैं आप। ओके, यहाँ वंश शरीर का नहीं है, अभी वंश शरीर बाकी नहीं रहा है, शरीर को वैल्यू नहीं है। परमेश्वर कहता है पृथ्वी के सारी पीढ़ियां नाश कर दी जाएगी, सिर्फ धर्मियों का वंश बचाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो आप अपनी जगह में आज जो जीवित है, जब वो मसीह यीशु में है और आपके बेटी है, आपका बेटा है, जो भी है वो जीवित रहेगा। हालेलुया। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बेटी है तो वो पीढ़ी नहीं है, ऐसा नहीं है। अब बेटी भी अगर आपके पास है तो भी अगर आप मसीह में हैं तो आप बेटी के द्वारा जितना भी आपके इस पृथ्वी के ऊपर मसीह जीवन के अंदर लोगों को आप लाएंगे वो सब आपके संतान होंगे। ओके, यीशु ने क्या कहा? जो परमेश्वर के आज्ञा पालन करेगा केवल वही मेरे भाई, माता, मेरे बहन, वही लोग हैं, है ना? तो हमारा परिवार कौन है? अभी हम जिसको मसीह में लाते हैं वो ही हमारा परिवार है और वही हम सब इकट्ठे अब जीवित रहने वाले हैं, यीशु के वंशधारी होकर हम जीवित रहने वाले हैं। उसने क्या कहा? जब वो दोष बलि हो जाएगा उसके बाद उसका वंश शुरू हो जाएगा। ओके, तो बराबर है ना? जब वो पाप का बलिदान हो चुका उसके बाद ही उद्धार शुरू हो गया, पुनरुत्थान का आत्मा आया, नया जन्म शुरू हो गया। अब हम नए जन्म में हुए लोग हैं। ओके, तो अब हम कौन है? मसीह वंश के लोग हैं। ठीक है, हमारी पीढ़ी अब वो नहीं जो शरीर से पहचानी जाती है, हमारा खानदान अब वो नहीं जो शरीर के आधार से कनेक्टेड है। ओके, हमारा वंश मसीही वंश है, हम मसीह के बीज हैं। ओके, हम मसीह के बीज के जन्माए हुए लोग हैं। ठीक है, तो हमारी पीढ़ी कौन है? हमारा पीढ़ी का मूल पिता कौन है? मसीह यीशु। हालेलुया। तो शरीर का मूल पिता कौन था? आदम। लेकिन हमारे अब नए जन्म में, नए पीढ़ी में हमारा मूल पिता कौन है? अभी से वो पुरानी पीढ़ी खत्म हो गई। परमेश्वर ने कहा पुराना सब जाता रहेगा और देखो मैं नया लेकर आया हूँ, है ना? नया हो रहा है सब कुछ। तो अब हम नए जन्म में है, तो अब नए जन्म में हमारा रूट, हमारा मूल पिता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो हम शरीर के अवस्था का पालन नहीं करना है, जो पीढ़ियों की अवस्थाएं हैं, शरीर के पीढ़ियों की अवस्था है, उसके पालन नहीं करना है। हमने सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु जो है उसी को पालन करना है। आमीन। अब आगे देखेंगे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। किसके द्वारा? अपने ज्ञान के द्वारा धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। ओके, तो हम
हम बोलते हैं ना, हम अधर्मी नहीं बनना चाहते, तो अधर्मी नहीं बनना चाहते तो यीशु मसीह का ज्ञान प्राप्त कर लो, वही आपको धर्मी बनाता है। हालेलुया। आप देखिए आगे क्या है, यीशु मसीह का ज्ञान हमारे अंदर आ गया है और हम धर्मी हो चुके हैं। आपको कितना बड़ा प्रूफ है ये, ठीक है। उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। ओके, तो हमारा जो भी शरीर पीढ़ी से हमने किए हुए अधर्म है, उसका बोझ यीशु मसीह ने उठा लिया है। इस कारण मैं उस महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। हालेलुया। प्राण कैसे उंडेला जा सकता है? बराबर है, प्राण को उंडेला जाना, इसका मतलब है वो पानी की तरफ बहाया जाता है, उसको कहते हैं उंडेला जाना, है ना। तो इसका मतलब प्राण लहू है, यानी लहू यानी मांस, शरीर का प्राण लहू है, शरीर का प्राण लहू है, ठीक है। तो ये प्राण है, लहू ये इसको ही कहा जाता है प्राण। लोग बोलते हैं ना, क्या प्राण कहाँ है, फिर प्राण कहाँ है? ओके, तो शरीर का प्राण लहू में है। कहाँ है शरीर का प्राण? लहू में है। ओके, तो लहू में है प्राण, तो उसने क्या किया? लहू को उंडेल दिया। हालेलुया। तो उसे क्या कहा गया? प्राण उंडेल दिया। आमीन। तो इसके लिए हमारे शरीर के अंदर जो लहू बहता है, हमारा प्राण अब वो नहीं रहा जो उंडेला जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने वो उंडेल दिया है। आमीन। अब हमारे अंदर प्राण कौन है? पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का जीवन देने वाला आत्मा। अब हमें जीवदान कहाँ से मिलता है? शरीर के लहू से नहीं मिलता है, हमें जीवदान परमेश्वर के आत्मा से मिलता है, जिसको जीवन देने वाला आत्मा कहा गया है। आमीन। तो हमारा शरीर इसके लिए निरोगी रहने का हक रखता है, क्योंकि लहू जो है वो शरीर के अंदर खराब हो जाता है, तो शरीर निरोगी नहीं रह सकता है, आरोग्य में नहीं रह सकता है। तो ये लहू के अंदर अब हमारी शरीर की ताकत नहीं रही है। हमारे शरीर की ताकत किसके अंदर चली गई है? अभी किस पर डिपेंड है? पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड है। ओके, इसके लिए हमारे शरीर के अंदर अब कोई किसी भी प्रकार की अवस्था खराब नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे शरीर को जो पोषण चाहिए वो लहू से नहीं आता है, पवित्र आत्मा से आता है। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारा शरीर का अब प्राण बदल चुका है, पवित्र आत्मा अब हमारा प्राण बन चुका है। आमीन। शरीर का प्राण अब लहू नहीं रहा, शरीर का प्राण अभी पवित्र आत्मा बन गया है। आमीन। अब देखिए, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। हालेलुया। यानी आप बोलते हैं इंटरसेशन प्रेयर, मध्यस्थी की प्रार्थना, ये है वो। ओके, अपराधियों के लिए विनती करते रहना। ओके, अपराधी है तो अपराधी क्या करता है? गुस्सा दिलाता है ना। अपराधी बोलेंगे तो हमारे मन कड़वे करने वाले लोग रहते हैं, है ना। हमारे मन में खुन्नस लाने वाले लोग रहते हैं, हमारे मन में खीज पैदा करने वाले लोग रहते हैं, है ना। तो अपराध करने वाला कभी हमको आनंदित नहीं करता है, वो हमको दुखी कर देता है ना। तो परमेश्वर बोलता है, मैंने यीशु मसीह को तो ऐसा बनाया कि वह उनके लिए विनती करते रहेगा। विनती बोला है, डिमांड नहीं बोला है ना। रिक्वेस्ट बोला है, रिक्वेस्ट। कर देना पिता, कर देना, जाने देना, क्या है प्रॉब्लम, कर देना। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के मन को बदल लिया था और लूत के परिवार को बचा लिया था। ओके, जैसे मूसा ने परमेश्वर के मन को बदल लिया था और इस्राएल को मार डालने से बचा लिया था, है ना। उस प्रकार से हम परमेश्वर का मन अपराधियों के ऊपर से बदल लेते हैं और हम अपराधियों को मसीह बनने का रास्ता देने के लिए मांगते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार के यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान हमारे लिए काम कर रहा है। वो किस प्रकार का वर्णन है? सेम टू सेम हमको
ये जीवन में सहना पड़ता है। ओके, शरीर के ऊपर उपद्रव हमको शांति के साथ चल के आगे निकलना पड़ता है, ठीक है। और अपराधियों के लिए हम लोगों को विनतियाँ करते रहना पड़ता है, ठीक है। क्या परमेश्वर अपराधियों को बचाना चाहता है? परमेश्वर का क्रोध है उनके ऊपर, वो नाश करने के लिए उठ गया है। इसके लिए अब्राहम क्या किया? सदोम गोमोरा के ऊपर परमेश्वर ने क्रोध था, इसीलिए नाश करने के लिए ठान लिया था। अब्राहम ने विनती करके 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 कम से कम लूत को परिवार के साथ बचा लिया। हालेलुया। वैसे ही मूसा ने, जब परमेश्वर का क्रोध था इस्राएल के ऊपर, वो बिल्कुल अब खत्म करने जा रहा था इस्राएल को, ओके, मूसा ने विनती करके 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 इस्राएल को बचा लिया। हालेलुया। तो इस प्रकार से है, अपराधियों का हमको बड़ा दुख देने वाला समय रहता है। ऐसे लगता है मर गए तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा भी लगता है, ओके, क्योंकि इतना बेकार काम वो लोग, इतना घिनौना काम वो लोग करते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने क्या किया? उनके लिए विनती किया। तो निश्चित है फिर यीशु मसीह विनती करता है तो हमने क्या करना है? विनती करना है है ना। तो इतना सहना पड़ता है अपराधियों को, समझ में आया? इतना सहना पड़ता है अपराधियों को। इसके लिए हम लोगों को बहुत पेशेंस रख के जीना पड़ता है इस पृथ्वी के ऊपर, बुद्धिमान के साथ, और अवसर को बहुमूल्य समझते हुए बाहर वालों के साथ व्यवहार करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु सच में महान है हमारे लिए। उसने इतनी बड़ी बात हमारे जहन में लाई, हमारी समझ में लाया। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि तूने हमें ये सारे वचनों के भेद सिखाए। जॉन 5:19 से 27 वर्स, 1 किंग्स 19th चैप्टर। हम 2 साल का, 1 मिनट नहीं, 2 साल का बाइबल रीडिंग ये है जॉन 5 चैप्टर 10 वर्स से 18 वर्स, 1 किंग्स 17 चैप्टर 18 चैप्टर। ये है 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, ओके। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 10 वचन से 18 वचन, पहले राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय 18 अध्याय। हमने अब देखा कैसे पवित्र आत्मा ज्ञान को महत्व देता है। अगर हमने अकेले में बैठकर व्यक्तिगत समय में ये अध्यायों को पढ़ेंगे 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को, तो ज्ञान की बढ़ोतरी करके देगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। ज्ञान की बढ़ोतरी महत्वपूर्ण है। आमीन। परमेश्वर महत्व देता है ज्ञान का, ठीक है। तो हमने उसके अंदर बढ़ना है, हमारी उन्नति कर लेना है। व्यक्तिगत पर्सनल टाइम में बैठकर इन अध्यायों को पढ़ेंगे, ओके। और फिर ये वचनों का हमें सीखने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे रखा है, अनुग्रह का आत्मा, जो हमको परमेश्वर चाहता है उस डेस्टिनी में, मंजिल में पहुंचाने का ज्ञान हमारे अंदर देता है। हालेलुया। और हमने निश्चित पवित्र आत्मा का, अनुग्रह की आत्मा का लाभ लेना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमें फिट एंड फिक्स कर, हम तुझसे विनती करते हैं, और हमें ईश्वरीय डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, ईश्वरीय रचना में लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन।